Right, everyone. So we are starting up with a new chapter today, areas related to circles. Here in this chapter, this is chapter 11. Here in this chapter, we are going to find areas of different segments or different sectors of the circle. How do we get it? That's very easy. It's simple calculation based task. So we will be doing this chapter trying to complete it in a 2 hour stretch today. ठीक है इसे आज ही में finish करेंगे. So before we go on with the chapter, let us understand two things first. Whenever you draw two radii in a circle is cut into sectors. The smaller one is a minor sector, the bigger one is a major sector. So, like you cut out the slices of a pizza, that is cutting the pizza into sectors, right? That is sectors. So, herein, whenever two radii are drawn like this, the one enclosing smaller area of the circle is called as minor sector, and the one enclosing the bigger area is called major sector. Right, bache? Terminology clear? What are Yes. sectors? Now is the next thing, segments. So, like you split the chapati while eating, right? That is cutting it into segments. So, that is when a chord circle divides a circle, when a chord divides a circle into two different portions, the one having the smaller area is called as minor segment. That's segment, right? And the one with the bigger area is called as major segment. Segment is the word. So, what is the difference between segment and sector? The words Two this radii versus is one chord. this is a sector wherein circle is cut by radii, right? And what is this? This is a segment. The circle is cut by chords. God. Understood, bache? Clear with the point? Okay. Moving ahead. Now, this formula we need to understand, beta. If you are finding the area of some sector with angle theta at the center, so this is how it is read, that this is one sector AOBP. With four letters, you'll name the sector. AOBP is the sector with angle theta at the center. This sector to find out the area of this is like the complete area of the circle times theta by 360 degree. So that is like finding a fraction of the complete thing. When I write theta by 360 degree of area of circle, that means from here I can understand that theta is the angle inside the sector, that जिसका area मुझे find करना है. 360 degree is the full angle, complete angle, and area of square is pi r square. So that is theta by 360 degree into pi r square. So this is like a fraction of the whole area. Understood or not? Because this angle is actually dividing circle into some fraction, some part. So we will find the area of this as a part of the whole circle. Understood or not? Formula याद हो जाएगा. Theta by 360 degree is a fraction of the selected portion भी आपने sector select किया है, and pi r square is the area of the circle, right? Now, if I want you to find out the length of this arc APB, this is the arc APB, and if I want you to find the length of this arc APB, how to find that? ARC APB. How to find that? This is the same thing again. It is the fraction theta by 360 times the complete circumference of the circle, that is 2 pi r. Clear or not, everyone? Yes, ma'am. Both the formulas very simple, clear. Write these formulas in your notebook and put them into box. That area of sector with angle theta will be written as theta by 360 degree into pi r square, where r is the radii of the circle.
and length of arc of a sector of angle theta degree equals to theta by 360 into 2 pi r. 2 pi r is the circumference of the complete circle. Clear with this fact? चले आगे. Formulas we have understood. चलो बच्चा, let us get started. We are now starting up with exercise 11.1. इस चैप्टर में कोई थ्योरम्स नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है. फॉर्मूलाज आपको दो ये पता चले, बस इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर हमें काम करना है. अभी हमें बस एक टेक्निक सीखनी है कि एंगल्स कैसे जल्दी से सॉल्व किए जाते हैं. अगर तो एंगल 60 डिग्री होगा तो रेडियाइस के बीच में, तो हम वो उसे हम देखो यहाँ पर ध्यान से. इफ दिस इज 60 डिग्री, तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि दिस ट्रायंगल फॉर्म्ड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? बताओ बच्चे. Yeah. No. Oh, yes, ma'am. हाउ मान्या? Ma'am, the radius is equal राइट. and the one angle is 60 degrees. So the opposite angles are also equal. So 180 minus 60 is नहीं बेटा, सुनो सुनो सुनो. दिस यू गॉट राइट दैट द रेडियाई आर इक्वल ऑलवेज. रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल आर इक्वल ऑलवेज, बट हेयर बेस एंगल्स विल बी इक्वल. दीज आर कॉल्ड बेस एंगल्स बेटा. ठीक है. yes. जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हो, इसे आप बेस बोलते हो, और इसके ऊपर ड्रॉन टू एंगल्स को बेस एंगल्स बोलते हैं. So these are the base angles जो equal होंगे. So this is x and x. So x plus 60 is 180. That is 2x plus 60 is 180. That means 2x is equals to 120. That means x is equals to 120 by 2. That means 60. इसका मतलब base angles are also 60 each. Yes, ma'am. Right or not? Uh, Prisha, understood or not? Yes, ma'am. That means all three angles are 60 degree. इसका मतलब this is an equilateral triangle. Understood or not? राइट. सो अगर कभी भी आपको सेक्टर रेडियाई के बीच में 60 डिग्री दिखता है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अदरवाइज इन ऑल केसेस रेडियाई तो इक्वल होगा ही, बाकी कुछ भी एंगल हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो यहाँ बनेगा ही. बाकी अभी कैसे फाइंड करते हैं एरियाज को, उन्हें क्वेश्चंस के फॉर्म में समझेंगे. ओके. सो एक्सरसाइज 11.1, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई एज 22/7. It's obvious to take pi as 22/7. First question we are solving here. Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. Remember बच्चा, 60 डिग्री होगा अगर एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. पर यहाँ पर ध्यान रखें 60 by 360 मीन्स 1/6 है ना. तो आपको जो भी एरिया गिवन होगा उसका 1/6 करना है. Isn't that a very simple fact? है ना बच्चे? माइंड में क्विकली सोच पा रहे हो कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी है तो एरिया ऑफ सर्कल का कितना पोर्शन होगा इस सेक्टर का एरिया? दैट विल बी 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि पता नहीं जब असर्शन रीजनिंग में आता है तो कुछ भी हो सकता है. ओके. तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये फुल एरिया के सर्कल का क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन हमें लिखना किस तरीके से. बिकॉज ज्योमेट्री का पोर्शन है तो वील सबसे पहले राइट गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियाई. वैसे एक और तरीका है, आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह भी लिख सकते हैं. सो विद सेंटर एंड रेडियाई ओ कॉमा आर, इस तरीके से भी आप इसे शो कर सकते हैं. ठीक है, अभी बताऊंगी और क्वेश्चंस के साथ आगे आगे. अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियाई 6 centimeter. Angle of sector is 60 डिग्री. अब एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे रेफरेंस के लिए सर्कल का.
जरूरी है, कंपलसरी है ड्रॉ करना, जिसमें 2 रेडियाई, प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ नहीं करना है एंगल, नॉट टू स्केल होगा ये डायग्राम। दिस इज 60 डिग्रीज। ठीक है, तो अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियाई 6, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ईच रेडियाई है, एंड एंगल ऑफ सेंटर इज 60 डिग्री हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो लेट मी नेम दिस फर्स्ट, ए ओ पी बी, राइट बच्चे। फॉर्मूला यूज लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, क्या फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ मैं यहाँ पर, थीटा बाई 360 मैम टाइम्स पाई आर स्क्वायर। हाँ जी बेटा बोलो। मैम वेयर हैव यू रिटन पी? पी इज दिस बेटा, Oh, ओ okay, ma'am. ए पी बी। Ma'am, ठीक what है is P like stand for? Like बेटा, over there? नथिंग, पी डजंट स्टैंड फॉर, इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। क्योंकि अगर मैं ओ ए बी सेक्टर बोलूं बच्चे, तो ओ ए बी सेक्टर तो ये भी हो सकता है ना। हाँ. अच्छा, इसीलिए टू okay. स्पेसिफाई विच सेक्टर यू आर टेकिंग, इसीलिए मैंने एक पी पॉइंट ले लिया ओ ए पी बी बना बताने के लिए। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री 1/6 हो जाता है, 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 6 राइट और नॉट बच्चे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No. सॉल्व कर लोगे इसे या मुझे सॉल्व करवाना है? अपने आप से मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करना, फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन में। और क्योंकि ये एक एरिया है, क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, सेंटीमीटर्स है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट बच्चे, कैलकुलेशन बेस्ड काम मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है, इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कैलकुलेशन सॉल्व करवाऊं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आरुष, चले, नोटबुक में प्रॉपर्ली हो गया। अभी लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर प्लीज लिखना। So the area of sector O selected so the area of selected sector या area of sector OAPB is equals to whatever square centimeter। ठीक है, चले नेक्स्ट पार्ट में। Yes, ma'am. Now we are finding the area of a quadrant in the next question. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22. So first of all let me draw। बेटा गिवन जरूर लिखना, मैं हर बार गिवन नहीं लिखवाऊंगी, इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मेरा काम आपके ब्रेन को ट्रेन करना है। एक दो बार बता रही हूँ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए फुल मार्क्स के लिए, मार्किंग स्कीम हमने पहले रेफर कर ही लिया सीबीएसई से इशू, तो इसीलिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखो अपनी, और मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। चले अभी देखें, व्हेन दे से क्वाड्रेंट, द वर्ड क्वाड्रेंट मींस 90 डिग्री एंगल, है ना। क्वाड्रेंट 1/4 होता है ना 360 डिग्री का, so quadrant is 90 degrees। So find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22। So you know already given to given circumference is 22 centimeters, that means 2 pi r is 22, that means 2 into 22/7 into r is 22। From here can we do transposition and solve this? So that's 7/2, clear or not, है ना। आगे चलें, आगे देखें। So we know now radii of the circle is 7/2। आप चाहो तो इसे पॉइंट्स में भी ले सकते हो, completely up to you। अगर डेसिमल्स के साथ कैलकुलेशन में फ्रेंडली हो, अच्छे से कर लेते हो तो डेसिमल्स में चेंज करना, नहीं तो रेडियाई को फ्रैक्शन में रखना अलाउड है, रख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है हमें।
मैं इसको नेम कर देती हूँ OAPB, और आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी टू राइट OAPB एवरी टाइम. एरिया ऑफ सेक्टर OAPB will be equals to 1/4 this time, theta by 360 into pi r square. फॉर्मूला है, पहले pi r square जरूर लिखना. This is 90 by 360 which is 1/4, है ना. So 1/4 of 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. कोई प्रॉब्लम है क्या इसको सॉल्व करने में? No, ma'am. जल्दी से कर दो सॉल्व. 77 by 8. मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके छोड़ना बच्चे, ऐसे नहीं. ठीक है बच्चे. क्लियर है? चले नेक्स्ट करें. आरुष डन? Ma'am, one. प्रॉपरली लिख रहा है सब कुछ? राइटिंग टाइम चाहिए? 2 मिनट पॉज करूं वीडियो. Ma'am, almost done. So, अगर राइटिंग टाइम चाहिए हो बता सकते हो मुझे बेटा. ओके. ऋषा डन बेटा? Yes, ma'am. Now we're doing question number 3. The length of the minutes hand of a clock is 14 centimeter. मिनट हैंड का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर्स है. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स में जो मिनट हैंड मूव कर गया है उससे स्वेप्ट एरिया हमें फाइंड करना है. सो सबसे पहले तो वी शुड नो व्हाट पोर्शन ऑफ इज इट द टोटल. ठीक है बच्चे. तो आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि 5 मिनट्स के कितने ब्लॉक होते हैं? टोटल 12 ब्लॉक्स होते हैं पूरे उसमें, है ना बच्चे. और 12 ब्लॉक्स में पूरा 360 डिग्री कवर होता है. तो 360 डिग्री को डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईच कितने डिग्रीज का है. ये तो हुआ बेसिक मेंटली करने का तरीका. अब आप इसे सीबीएसई में किस तरीके से करेंगे ध्यान से सुनो. विल राइट इन 60 मिनट्स angle made by minute hand is equals to 360 degrees beta. So in 1 minute कितना हो जाएगा? 360 by 60. इन 5 मिनट्स कितना हो जाएगा? ये 6 हो गया. 6 डिग्रीज 1 मिनट में 6 डिग्रीज मूव करती है मिनट हैंड. सो इन 5 मिनट्स दैट इज 6 times 5, 30 डिग्रीज. तो हर ब्लॉक जो है ना बच्चे, जो मिनट हैंड बनाती है क्लॉक पर, वो हर ब्लॉक 30 डिग्रीज का होता है. ओके. दिस इज 30 डिग्रीज ईच. क्लियर और नॉट? एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्टली सोच सकते हो, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस तरीके से तो आपको पूरा ये सॉल्व करके दिखाना होगा. सो नाउ नेम इट OAPB. एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है हर बार. 30 by 360 अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1/12. क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसे 12 ब्लॉक्स बनते हैं क्लॉक में? याद है ये बात सबको? है ना. तो होना तो 1/12 ही था, राइट और नॉट. अगर उन्होंने 5 मिनट्स पूछे तो ऐसे टोटल 12 ब्लॉक्स बने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ब्लॉक्स होते हैं तो 1/12 ही होना था. ठीक है.
पर आप इसे इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा शो करेंगे। 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में 22/7 इंटू आर के लिए 14 ठीक है बच्चे। अच्छा, अब इसको 1/12 कर दो डायरेक्टली, और अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2, सो 1 and 6, 3 and 11। अब 3 से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, न्यूमरेटर में बच रहा है 3, तो 14/3 नहीं, इंटू 11 भी है, तो 154, 154/3। 11 इंटू 14 विल बी 154। किसी भी नंबर से 11 को मल्टीप्लाई करना हो जल्दी से, उसकी ट्रिक क्या होती है? 11 इंटू 14 कर रहे हो, दोनों नंबर्स को लिखो 1 और 4, और बीच में दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 154। ठीक है, तो पाए में मोस्ट ऑफ द टाइम 11 बनता है, कैंसिल ऑफ होके 22/7 के बाद कहीं पे भी कट हो रहा हो इवन नंबर तो 11 आता है, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब 154/3 मीन्स दिस इज 5 and 1, and this will be one step away, so 51 1/3। ठीक है बच्चे, Yes, ma'am. 51 1/3 एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्लियर है बच्चे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? कंप्लीट कर लिया, आगे चलो या वेटिंग टाइम चाहिए? Ma'am, done. प्रिशा डन? यस मैम। समझ में आ रहा है? चैप्टर इजी है, मुश्किल तो नहीं है? Yes, ma'am. राइट। अगर 15 फरवरी को एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो आज 132 डेज बाकी रह गए हैं बच्चे सिर्फ। ठीक है, 90 चैप्टर्स बिगिनर्स टू एडवांस लेवल एंड 132 डेज लेफ्ट ओनली। सो प्लीज ध्यान लगा के पढ़ो, फेस्टिवल्स में, सेलिब्रेशंस में, वेडिंग सीजन आने वाला है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डूइंग नाउ। A chord of a circle of radius 10 centimeter. Now I am talking about, मुझे ना यहाँ सेगमेंट्स की बात करनी है, तो बिफोर आई गो टू द क्वेश्चन मुझे एक बार आपको सेगमेंट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है। तो देखो बेटा, ये है एक सर्कल और ये है एक कॉर्ड। इफ दे आस्क यू टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, सेगमेंट का एरिया फाइंड करने को कहते हैं। तो डायरेक्टली सेगमेंट के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सेक्टर का ही एरिया फाइंड करते हैं। तो वट एवर थीटा इज गिवन हेयर, एंगल इज गिवन हेयर, आप पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। अंडरस्टूड और सॉरी सेगमेंट, अंडरस्टूड और नॉट बेटा? ठीक है, क्लियर है प्रेशा, मान्या? Ma'am, can you repeat? बेटा अगर आपको इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने को आएगा तो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सेक्टर। ये पूरा जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन का एरिया आप फाइंड करते हैं पहले, और फिर उसके अंदर से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। Yes. दिस पोर्शन यू सब्ट्रैक्ट, तो बाकी क्या रह जाता है? बाकी आपको दिख रहा है यहाँ पे सेगमेंट रह जाता है। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को हमें इसी बेसिस पे सॉल्व करना है। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स a chord of a circle of radii 10 centimeters subtends a right angle at the center। तो मैं यहाँ पर मतलब वो क्वाड्रेंट बन रहा है,
राइट, अभी फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मतलब ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, ये करना है आपको फाइंड। तो आप इसको फाइंड करने के लिए एज आई जस्ट नाउ टोल्ड यू कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले विल फाइंड, इसको नाम कर देते हैं ओ ए पी बी बेटा, और एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ ए पी बी फाइंड करेंगे। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 1/4 होता है वो फुल का। तो फॉर्मूला लिखना बेटा प्लीज जरूर, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर 22/7। यहाँ पर पाई यू हैव टू टेक एज 3.4, तो 22/7 नॉट अलाउड। सो 3.14 क्वेश्चन में प्लीज देख लेना बच्चे, क्योंकि अगर 3.14 गिवन होगा और 22/7 लगाया होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर दिस टाइम इज 10 × 10। ठीक है बच्चे, जल्दी से इसका आंसर फाइंड करो फटाफट से। डिवाइडिंग बाय 4 मीन्स कटिंग समथिंग इनटू हाफ्स ट्वाइस। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 8 मीन्स उसको 3 टाइम्स हाफ करना है, डिवाइडिंग बाय 2 मीन्स एक बार हाफ करना है। तो 314 को हाफ करना है, तो हम 1, 5 एंड 7। अच्छा, अब तो इसके बाद तो डेसिमल आ जाएगा। 157/2 एरिया हो गया सेक्टर का। ठीक है बच्चे, अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल आरुष, कैसे निकालेंगे? ओ ए बी का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? Area of OAB is 40 upon 360 into 3.14. I mean pi r square. हाँ, मुझे तेरी वॉइस प्रॉपरली क्लियर नहीं आई, बट हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पे लगा Equal सकते हैं। upon 360. ठीक है, Yes, ma'am. तो हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ ऑफ, अलग अलग तरीकों से वो आएगा बच्चे, एरिया अलग अलग तरीके से आएगा। कभी 90 डिग्री होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, कभी 120 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, 60 डिग्री होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 a² लगाएंगे। तो अलग अलग एरिया के ट्रायंगल्स लगेंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे सिखाते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जिसमें 120 डिग्री है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, सो हाफ बेस इंटू हाइट कर रहे हैं हम, बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। सो 10 × 10 100, 100/2 is 50, so that is 50 square units, स्क्वायर सेंटीमीटर्स, स्क्वायर सेंटीमीटर्स। जहां भी एरिया फाइंड कर रहे हो स्क्वायर यूनिट्स जरूर लगाना है। सो नाउ आई विल राइट एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट APB। ठीक है बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर 3 लेटर से नेम करेंगे। सो एरिया ऑफ minor sector segment, minor segment APB is equals to area of sector minus area of triangle। ठीक है बच्चे, इस तरीके से लिखना है इसको। अब एरिया ऑफ सेक्टर, कर लिया सॉल्व बेटा, सब्ट्रैक्ट हो गया। No, ma'am. 157/2, जल्दी जल्दी से कर दो बेटा, सॉल्विंग पार्ट बाकी है, फटाफट से क्वेश्चन को खत्म करो। 157 minus 100 is 57/2। आंसर 57/2 है, मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ेंगे तो इट विल बी
8। ठीक है बच्चे, 28 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करें इसी का, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मींस दिस थिंग, सेक्टर। दिस इज पार्ट 2, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए कोई मेजर काम करने की जरूरत है क्या? माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर आपने निकाला ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो, है कि नहीं? सिंपल। करें इस पार्ट को भी सॉल्व, ये क्लियर कर दूं, सबने कर लिया ये? Yes, ma'am. Yes. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसको भी नेम कर देते हैं, यहाँ पर एक क्यू लेटर ले लेते हैं। सो मेजर सेक्टर OAQB। आप देख रहे हो मेजर सेक्टर को नाम कैसे दिया? ध्यान से देखो प्रेशा बोर्ड पे। आरुष, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? Ma'am, it's on. OAQB, आई कैन नॉट सी यू बेटा। OAQB। तो आप OAQB का कैसे निकाल सकते हैं? देखो, यहाँ तो आप एंगल लगाओ 270, 270/360 डिग्री करके एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल के साथ सॉल्व करो उसे। और नहीं तो फिर एक तरीका ये है यहाँ पर कि आपने πr² में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अंडरस्टूड और नॉट? तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का वैल्यू 157/2 था, उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर 3.14 इंटू r² मीन्स 10 × 10। अब जब इंटू 10 होता है तो वैल्यू क्या होती है? 2 स्टेप्स आगे शिफ्ट हो जाती है। तो 3.314 माइनस 157/2। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? सो 628 माइनस 157/2, व्हाट इज दैट? प्लीज सॉल्व तो कर लो जल्दी से, फटाफट से सॉल्विंग पार्ट खत्म किया करो क्वेश्चन का। कैलकुलेशन चेक करते रहना। Ma'am, 235 235 1/2, yeah, 235 1/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, डन। आगे चलें बच्चे। Ma'am, I'm copying it. ओके, मैं 2 मिनट के लिए पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियाई और रेडियस में क्या फर्क होता है? Ma'am, radio and radius are the same, right? रेडियाई प्लूरल होता है बेटा, रेडियस सिंगुलर होता है। Oh. No. I was thinking something else. रेडियस, एक रेडियस को कहते हैं रेडियाई, 2 रेडियस होंगे उसको बोलेंगे 2 रेडियाई होगा, 2 रेडियस नहीं होगा। ओके, सो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. So we have to find out the length of the arc. This length of the arc मतलब θ/360 या फिर 1/6 of the circumference of the complete circle, right? और next area of sector फाइंड करना है, तो area of sector 1/6 of complete square का area, and then area of segment फाइंड करना है, तो उसके लिए you will subtract this triangle to get the area of this. जिस समझ में आया क्वेश्चन का कैसे होंगे तीनों पार्ट्स, जल्दी जल्दी से करें सॉल्व। पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क के लिए। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला आई राइट θ/360 डिग्री इनटू द कंप्लीट सर्कमफ्रेंस। सो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क
फाइंड करने के लिए दैट इज 1/6 है ना, क्योंकि 60/360 डिग्री इज 1/6 ऑफ 2 पाई इज 22/7 इंटू 21 इंटू 21, राइट। सो अब ये 7 1s are 3s are 1s are 2s are 2 got cancelled, बाकी क्या बच रहा है 22 टाइम्स 21 है ना, तो 42 और 42 को ऐड करना है 462। कुछ रह तो नहीं गया ना डिनोमिनेटर में, नहीं, 462 सेंटीमीटर्स। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं अब। हो गया, नेक्स्ट पार्ट पे चलो बच्चे। द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। प्लीज लिख लेना फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में हाफ मार्क वेटेज है फॉर्मूला की, मिस करोगे तो बोर्ड के हर क्वेश्चन में हाफ हाफ मार्क्स लूज कर दोगे। सोचो कितने क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन, सब हाफ हाफ गए, 15 मार्क्स तो ऐसे ही गए। फॉर्मूलाज प्लीज जरूर लिखना, ओके। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। मेरे पास स्पेस का शॉर्टेस्ट है, मैं नहीं लिख रही हूँ, ओके। यहाँ पे मैं सीधा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रही हूँ, नेम करूंगी इसे ओ ए पी बी। अच्छा, ये भी जो पहले भी फाइंड किया ना एरिया ऑफ आर्क, इसमें भी नाम लिख दो ए पी बी। आर्क को 3 लेटर से बताते हैं, सेगमेंट को भी 3 लेटर से, पर उससे पहले स्पेसिफाई करते हैं आर्क ए पी बी। अगर कहीं ऐसा दिखे ना कि एरिया ऑफ ये फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ दिस फाइंड करना है या एरिया ऑफ दिस फाइंड करना है, इसका दो अलग मतलब होते हैं। लेंथ ऑफ ये फाइंड करना है मतलब ये आर्क है, आर्क का लेंथ ड्रॉ करना है, आर्क का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे? और अगर एरिया फाइंड करने को आएगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट अंडर विद दिस आर्क, ठीक है। 3 लेटर से सेगमेंट को शो करते हैं और आर्क को शो करते हैं। तो एरिया यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का नाम तो 4 डिजिट से देंगे, ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज 22/7, क्योंकि स्टेट नहीं किया है कहीं पे भी पाई का वैल्यू, so that is into 21 into 21। ठीक है बच्चे, करे जल्दी से इसको सॉल्व। 11 into 21 आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। Ma'am, 420. बोलो बच्चा Wait, बोलो। 11 into 21। 20. अभी ट्रिक बताया मैंने, 11 into 220. 20 200 Ma'am, 231. 31, बीच में सम होगा दोनों का। 231 स्क्वायर सेंटीमीटर्स लेंथ था, तो स्क्वायर यूनिट्स नहीं लगाया, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लगेगा बेटा। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स मत करना, ईच मिस्टेक पे हाफ मार्क जाएगा। हो गया एरिया फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। नेक्स्ट पार्ट करें, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट करना है इस एरिया ऑफ सेक्टर से। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, मैं यहीं पे आई एम फाइंडिंग सम स्पेस टू डू इट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी। अब कौन सा ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट तो लग नहीं सकता बच्चे, तो क्या यूज करें यहाँ पर। Ma'am, दिस इज एन theta. इक्विलैटरल ट्राइंगल, Hmm. so the formula will be √3/4 a square। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लो बच्चे, दैट इज √3/4 a square इज इक्वल्स टू √3/4
into 21 into 21. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों मैंने इसको Yes, इक्विलैटरल ma'am. ट्रायंगल ले लिया? Why is this an equilateral triangle? Clear है ना? क्योंकि if this is 60 degree, all the angles are 60 degree. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, मैंने 21 का स्क्वायर किया √3/4। अब आपको सिर्फ ये सब्ट्रैक्शन करना है दोनों का। जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ फटाफट से। व्हाट इज द आंसर? राइट बच्चे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया? हम इसे ऐसे भी लीव कर सकते हैं, 231 - 441 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चे, ये एरिया ऑफ सेक्टर से 231 से यू हैव सब्ट्रैक्टेड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस सब के अंदर बेटा क्या फुल मार्क्स मिल जाएंगे? इसमें एक चीज कम है। जैसे हमने कहा कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इक्विलैटरल ट्राइंगल यूज कर दिया, हमें ये बात यहाँ प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, सो यू विल राइट दैट ओ ए बी इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, so angle OBA is equals to angle OAB. The reason you will write angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. So you will take them both as x and x, and then by ASP 60 plus x is equals to 180. So 60 plus 2x is 180. So x is equals to 60 degree each. And hence from here you will conclude, hence triangle OAB is an equilateral triangle. Understood or not beta? Clear? और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसके अंदर √3/4 a² फॉर्मूला यूज करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी और बहुत काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? ये पोर्शन लिख लो थियोरी में और फिर हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जल्दी से। A chord of circle radius 15 centimeters subtend an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segments of the circle. So minor segment and major segment दोनों का आपको एरिया फाइंड करना है। माइनर और मेजर सेगमेंट है कहाँ? ये रहा बेटा माइनर सेगमेंट, नहीं विजिबल है ना, कलर दूसरा लेता है। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हुआ माइनर सेगमेंट। और एक बार माइनर सेगमेंट आ जाए फिर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो ये मेजर सेगमेंट बनती है इसका एरिया आ जाता है। तो दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, कौन सी? मेजर और माइनर सेगमेंट। ये फाइंड करने के लिए हम पहले माइनर सेगमेंट फॉर्म सॉल्व करेंगे और फिर पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करके मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन करना कैसे है? स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले आई एम फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर OAPB का सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए 1/6 ऑफ पाई का वैल्यू they've asked you to use 3.14. So 3.14 times 15 into 15, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा बच्चे। क्लियर? अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB।
और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB में मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल सॉल्व कर सकती हूँ √3/4 A² पहले, That's लेकिन fine. प्रूव करना पड़ेगा इन एवरी क्वेश्चन। तो जहां पे भी 60 डिग्री आएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना होगा तो पहले वहां पे सॉल्व करके लिखेंगे कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 A² यूज करेंगे। ओके, सो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए दिस इज √3/4 A² मीन्स 15 × 15। अब देखो बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट APB निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर OAPB से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। व्हाट आई डू इज, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी पढ़कर बताओ, मुझे क्वेश्चन पढ़कर बताओ कहीं भी दे हैव दे आस्क्ड यू व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी क्वेश्चन टैग है यहाँ पर? व्हाट, हाउ, व्हेन, इन दोनों से रिलेटेड No, no. नहीं है ना? इसका मतलब इसको प्रॉपरली सॉल्व करने की कोई वेटेज नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल को पूरा सॉल्व करने की कोई वेटेज नहीं है, आप स्टेट कर सकते हो एंड सिंपली यू कैन सब्ट्रैक्ट देम। सो 1/6 of 3.14 into 15 into 15 minus √3/4 15 into 15। मेरा बेनिफिट क्या है ऐसे ले करने में? मैं कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पोर्शन दैट आई एम यूजिंग टू सॉल्व। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 15 into 15 को कॉमन ले लिया, और तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, वैसे 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं 1/6 और 1/4 में से, पर अप टू यू, करना है तो 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, पर 225 के साथ 2 बाहर आएगा, कुछ मेजर डिफरेंस होने वाला नहीं है। ये 1/3 ऑफ 3.14 बचा अंदर बेटा। कैलकुलेशन अपने टाइप्स तरीके से कर सकते हो जैसे वहां पर समझ में आए। और ये हो गया √3/4, 4 नहीं √3/2, क्योंकि 1/2 हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। सो 15² इज 225, 225/2 टाइम्स 1/3 पॉइंट दिस, तो इसको बाय 100 कर देते हैं, और ये कैंसल ऑफ तो नहीं हो रहा है, तो मैं इसे 1/4/300 माइनस √1/3 को 1.73/2, ठीक है बच्चे। और इस पॉइंट को हटाकर इसे 200 कर देते हैं। अब 225/2, 300 और 200 का LCM विल बी 600, इसे 2 टाइम्स करेंगे, सो दिस विल बी 628 माइनस, इसको 3 टाइम्स करेंगे, 173 टाइम्स 3, 1119, 519, 519, सो 519, 628 माइनस 519 करना है, so that will be 901, so that is 225 into 109/2 into 600, राइट बच्चे? अब इसे भी सॉल्व कर लोगे कि मैं करवाऊं? जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। राइट बच्चे, आंसर 686.02 तक भी निकालोगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी करेक्ट, ठीक है। मैम दिस इज द आंसर। 06 नॉट जो 2। भी है बच्चे, ये जो भी है, इसको डेसिमल प्लेस के बाद इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक शो करो, दैट इज इट, उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
Yes. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, दिस वन इज नॉट द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इसीलिए आई एम हाइडिंग दिस फॉर माय वर्किंग स्पेस. So now I need to draw a diagram here. It is a circle of radius 12 centimeters. Subtend an angle of 120 degree at the center. कुछ 120 डिग्री का एंगल जो है वो सेंटर पर बन रहा है. Find the area of the corresponding segment. तो ये जो सेगमेंट है इसका एरिया वी नीड टू फाइंड आउट. राइट बेटा जी और नॉट. फाइंड क्या करना है समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का ना तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है कि √3/4 यूज हो सके, ना 90 डिग्री है कि हाफ बेस इनटू हाइट यूज हो सके. तो हमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है इस पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसे लेबल कर देती हूँ. दिस इज व्हाट A P एंड B. सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर देते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर OAPP, that will be 120/360, that means 1/3 of pi. Pi का value is given 3.14 into r square, so that will be 12 each. ये 1/3 है. इसे सॉल्व करके फटाफट आंसर बताओ मुझे जल्दी से. सॉल्विंग पार्ट करो अपने. तो 150.72 एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया. अब हमें सॉल्व करना है. मैं यहाँ पे सिर्फ ट्राइंगल पोर्शन ड्रॉ कर रही हूँ जिसपे अब हमें फोकस करना है. सो दिस इज दिस 120 degrees. Is it noisy behind me? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So this is 120 degrees, right बेटा? और हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किस तरीके से करेंगे? We will be first of all drawing a perpendicular from the center of the circle to the chord. We will be drawing a perpendicular. This is one construction that we'll be doing. And do you people remember a theorem that you have done in 9th class? That is a perpendicular drawn on the chord from the center of the circle bisects the chord. याद आया कुछ? अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंड लेट दिस बी पॉइंट M, तो ये जो PM है ये MA के इक्वल होगा. PM will be equals to MA. प्रॉपर्टी याद आई लास्ट ईयर की आरुष, प्रिशा? Yes, ma'am. ठीक है. अभी ये प्रॉपर्टी किस लिए कर रहे हैं हम? ये बताने के लिए कि अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो BM और MA दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, राइट बेटा? और ये दोनों जो ट्राइंगल्स बनेंगे ये कॉन्करेंट पहले हम प्रूव करेंगे. इन ट्राइंगल OMB and triangle OMA, OM is equals to OM, common. OB is equals to OA, radii of the circle, radii of same circle. Right?
And third point, angle OMA and angle OMB. इस तरफ angle OMB and इस तरफ angle OMA is equals to 90 degree each. So by which criteria? कौन सा criteria हुआ बोलो? वैसे तो SSS भी यूज कर सकते हो, तीसरा साइड BM is equals to MA बता के ये प्रॉपर्टी लगाकर, चाहो तो RHS प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हो. yes, सो SSS भी कर सकते हो क्योंकि SSS के लिए OA is equals to OB, OM कॉमन और BM is equals to BMA, MA अभी हमने बताया है इससे, है ना. तो SSS क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हो, मैंने RHS क्राइटेरिया यूज किया, दोनों ही क्राइटेरियाज यहाँ यूज हो सकते हैं. मैंने RHS कैसे यूज किया? R H is hypotenuse is OA and any one side OM. ठीक है, तो मैंने RHS क्राइटेरिया से ट्राइंगल OMB को कॉन्करेंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल OMA के. ठीक है बच्चे. नाउ इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, इसका मतलब दिस हाफ इज 60 डिग्री. अंडरस्टूड और नॉट? 120 डिग्री विल बी डिवाइडेड इनटू हाफ, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा ना. x एंड x इक्वल्स टू 120 डिग्री, इसका मतलब एक एंगल 60 डिग्री है. ये मुझे चाहिए था, इसके बिना मैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाऊंगी? ट्रिग्नोमेट्री किन ट्राइंगल्स में लगती है? जिसमें कोई एक एंगल राइट एंगल हो. तो उसके लिए मुझे ये ट्राइंगल सिलेक्ट करना था, और उसके लिए मुझे उस एक का एंगल पता होना चाहिए था. तो वो मैंने कैसे फाइंड किया? वो मैंने फाइंड किया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव किया, तो वो दो दो जो एंगल्स हैं वो पाई इक्वल हो गए. तो एक एंगल जो है वो हाफ हो गया 120 डिग्री का, दैट इज 60 डिग्री. इतनी बात आ गई बेटा समझ में? इम्पोर्टेंट yes, क्वेश्चन ma'am. है ये, एग्जाम में आता है बोर्ड्स में अक्सर. ओके, अब हमें पता है, अब मैं यहाँ पर आगे क्या सॉल्व कर रही हूँ. नाउ इन ट्रायंगल OMA, अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगी यहाँ पर. तो साइन 60 विल बी इक्वल्स टू, साइन की वैल्यू P/H होती है ना. P/H मींस ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड है AM. तो यहाँ पर 12, सो ऑपोजिट AM है AM/12. कोई प्रॉब्लम बच्चे? समझ में आई ये बात की नहीं आई? साइन 60 की Yes, वैल्यू ma'am. क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू इज अंडर रूट फिंगर बिलो बाय 2, है ना. तो दैट विल बी √3/2. तो √3/2 इंटू 12 विल बी AM. ट्रांसपोज कर दिया मैंने. सो दिस इज 6√3 AM. कोई प्रॉब्लम बच्चा? AM फाइंड हो गया 6√3. हाँ, Yes, ma'am. इफ दिस इज 6√3, पूरा कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? आरुष, Ma'am, प्रेक्षा, सोच सकते हो क्या क्या होगा? बोलो मान्या. ma'am, 12 into 3. 12√3. No, no, no. क्योंकि 6√3 का डबल हो जाएगा ना, डबल ऑफ 6√3 हो जाएगा ना, तो सिर्फ नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा बेटा. Okay. सो इट विल बी 12√3, है ना. तो ये बात हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो AB इज इक्वल्स टू 12√3. कितनी बात आई बेटा समझ में? ये Yes, पूरा ma'am. गेम क्यों हो रहा है? पूरा गेम खेल रहे हैं ये AB का लेंथ और ये OM का लेंथ फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये हमारे ट्रायंगल के बेस और हाइट है बच्चे. ये पता चलेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है. तो ये जो पूरी स्टोरी चल रही है, ये चल रही है AB और OM की लेंथ फाइंड करने के लिए. AB वी हैव ऑलरेडी फाउंड, अब मुझे फाइंड करना है OM. तो दोबारा से मुझे इसी ट्रायंगल के अंदर, अगेन इन ट्रायंगल OMA, cos 60 degree is equals to P/H. So this time B means your base, OM by 12.
समझ में आया बेटा? इस एंगल की बात हो रही है ना, तो ऑपोजिट ये रहा, ये परपेंडिकुलर है P बाय H के लिए AM बाय 12 लिया था, और OM के लिए आपने इस बार cos के लिए OM बाय 12 लोगे, क्योंकि बेस उस एंगल का बेस होता है, ठीक है? सो OM बाय 12 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू OM बाय 12। cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट फिंगर बिलो बाय अबव बाय 2 मीन्स रूट 1 बाय 2, मतलब 1 बाय 2 of 12 is OM, so that is 6। कोई प्रॉब्लम बच्चे? अब ये 6 आ गई लेंथ। अब आप देखो, ये लेंथ हो गई 12√3, आपको पता है ये 6 हो गई, तो हाफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो इस ट्राइंगल में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB will be half of 6 into 12√3, Yes, so ma'am. that will be 12 3s are Ma'am, 36 36. √3। अब आपको 36√3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फाइनल आंसर वुड बी 150 माइनस 150.72 माइनस 36√3। √3 का वैल्यू गिवन है बेटा, पुट करके सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करना, एंड देन यू विल गेट द आंसर फॉर फाइनल इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा। ये √3 का वैल्यू पुट कर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? टेक गुड 5 Yes. minutes to do this question neatly। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला बेसिक पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, फिर आपको ट्राइंगल पे फोकस करना है, उस ट्राइंगल पे हमें ए बी पूरा लेंथ और ओ ओ व्हाटएवर पॉइंट यू हैव टेक MN OM ये फाइंड करेंगे इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप दो पोर्शन से के लिए एक पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए म्यूट योरसेल्फ आरुष। तो आप सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और फिर आप वहां पर कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से, अगर आप AM BM यूज करना चाहते हैं तो ये पॉइंट लिखना बेटा वहां, ये जो प्रॉपर्टी है ये तब लिखना अगर आप AM को और BM को इक्वल यूज करना चाहते हो, ताकि SSS क्राइटेरिया यूज हो जाए। नहीं तो RHS क्राइटेरिया से भी ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हैं। RHS ट्राइंगल से कॉन्करेंट क्राइटेरिया कॉन्करेंट प्रूव हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे। एंगल MOB एंड MOA दोनों इक्वल प्रूव होंगे, तो दोनों x प्लस करके इक्वल्स टू 120 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री में x इज 60। एक एंगल 60 पता करते ही आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, एक बार साइन थीटा एक बार कॉस थीटा। आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता लग जाएंगे, उससे हाफ बेस इंटू हाइट में वैल्यूज पुट करेंगे। याद रखेंगे बेस पूरा जो है ट्राइंगल का वो डबल करेंगे पहले जो AM आया है उससे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल का एरिया आएगा, ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, टेक गुड 5 minutes टू डू दिस क्वेश्चन वंस अगेन वेरी नीटली इन योर नोटबुक। राइट बेटा, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meters by means of a 5 meter long rope। तो एक 5 मीटर लॉन्ग रोप है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रोप, 5 मीटर लॉन्ग रोप है। इसके एक कॉर्नर पे स्क्वायर के इस 5 मीटर रोप के हेल्प से एक हॉर्स को टाई किया गया है, और ये जो टोटल स्क्वायर का लेंथ है, फुल लेंथ है जो स्क्वायर की, दिस इज 15 मीटर्स बेटा जी। सो 15 मीटर्स के टोटल स्क्वायर में 5 मीटर लेंथ के साथ आप हॉर्स को एक पेग के ऊपर एक कॉर्नर पे टाई कर रहे हैं। They are asking you to find the area of that part of the field in which he can graze and increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5। तो सबसे पहले तो वो एरिया फाइंड कर लेते हैं जिसमें वो ग्रेज कर सकता है, मतलब वो ग्रेज करता हुआ एरिया कौन सा होगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, राइट और नॉट, है ना बच्चे? अगर रोप में कोई स्लैग नहीं है तो रोप मैक्सिमम डिस्टेंस 5 मीटर कवर कर सकती है, और वो हॉर्स मैक्सिमम इस सेक्टर में ग्रेज कर पाएगा। और इस वजह से ये जो
शेडेड पोर्शन बन रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है ऑफ अ क्वाड्रेंट, है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बन रहा है। तो क्वाड्रेंट में स्क्वायर के वर्टिसेस पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ये रहा 90, और रेडियस आपको पता है 5 बन गया इस सेक्टर का, इस क्वाड्रेंट का। तो अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सो इट्स सो इजी, 90 बाई 360 इज 1/4। सो एरिया ऑफ, इसे नेम कर लो ओ ए पी बी। So that will be area of OAPB is 1/4 of 22 by 7 into 5 into 5। कोई प्रॉब्लम बच्चे? सॉल्व करो जल्दी से इसको। टू 75/14 फ्रैक्शन में आंसर आ गया, क्योंकि 5 5 इज 25, 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया 275, 275 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है बच्चे, 275 डिवाइडेड बाय 14, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, राइट। It will be 13 and 5 135. So that will be 126. So 126 lines are differing by 1. इसको सॉल्व करो बेटा, चेंज करो इसे जल्दी से। 19 point something is the answer for this area of sector of this grazing portion। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट दे आर आस्किंग एरिया इन इंक्रीज क्या होगा। नेक्स्ट दे आर आस्किंग एरिया इन इंक्रीज क्या होगा अगर आपका हॉर्स जो है वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर रोप से टाइड है। सो नाउ दिस पोर्शन इज 10 मीटर्स। तो आप फिर से एरिया ऑफ न्यू सेक्टर फाइंड करेंगे यहाँ पर, और इसमें से आप ये ब्लैक वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंक्रीज इन एरिया पता चल जाएगा। राइट और नॉट बच्चे, क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है मान्या प्रिशा? इसे हम यहाँ नाम Q दे देते हैं, इसको कुछ और L और M दे देते हैं। सो नाउ आई एम फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेक्टर OLQM, which will be 1/4 of, again 1/4 by 90 by 360 है ना, सेम है, into 22 by 7 into 10 into 10 बेटा। एक बार क्वेश्चन के एंड में देख लेते हैं कहीं पाई का वैल्यू हमें 3.14 तो नहीं बोला है। ओ पाई का वैल्यू 3.1, तो इसको पाई को इसी सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। हाँ, तो पाई जब वैल्यू आता है 10 के साथ तो इट्स सो इजी, क्योंकि पॉइंट रिमूव हो जाता है इन दोनों टेंस की वजह से। सो 314 डिवाइडेड बाय 4, सो हाफ करो इसको, ये हो गया 157/2। सो दैट इज 7 8 1/2, 78 1/2। सो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर OLM 3.14 से, और इसको यहाँ करेक्शन करनी पड़ेगी बेटा इस कैलकुलेशन, ये 3.14 यूज करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को दोबारा से करो बच्चे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एरिया ऑफ बिगर सेक्टर है, ये एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द एरिया ऑफ इन इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। नो, जो भी हॉर्स अब ग्रेज कर सकता है उसमें एरिया में इंक्रीज कितना है, यू विल बी एबल टू फाइंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। करो जल्दी से सॉल्व इस क्वेश्चन को एंड लेट मी नो योर आंसर। राइट बच्चे, नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
A broach is made with silver wire in form of a circle with diameter 35 millimeters. Diameter of this broach is 35 millimeter, but I always recommend writing the radius in the diagram. So 35 का half करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? That will be 17.5, है ना? What is 35 का half? 17.5. So this will be 17.5 mm radius. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown. तो इस तरीके से 5 diameters भी सिल्वर वायर में लगाए गए हैं, सिल्वर वायर से लगाए गए हैं टू ड्रॉ दिस पैटर्न इन द ब्रश. ठीक है, क्या किया है आपने? सिल्वर वायर को एक ब्रश में चेंज किया है जिसका डायामीटर गिवन है और साथ में बीच में 5 डायामीटर से पार्टीशनिंग क्रिएट की है. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड फॉर दिस एंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रश. तो एक सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है और टोटल कितना सिल्वर वायर लगा है वो भी यूज करना है. सो फॉर फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बेटा. तो फॉर द फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग को जो सरकमफ्रेंस पे यूज हुआ है वो यूज करेंगे, है ना? सिल्वर वायर सरकमफ्रेंस पे. सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. तो 2 इंटू 22, एक बार मैं क्वेश्चन का एंड चेक कर लूं कि कहीं पाई का वैल्यू ठीक है नहीं मेंशन है, इसका मतलब 22/7 लेना है. So 22/7 into R is 17.5. आप चाहो तो इसे 35/2 भी रख सकते हो, रेडियस को फ्रैक्शन में रख सकते हो ताकि थिंग्स बिकम इजियर. ठीक है बच्चे, तो 1 और ये 1 एंड दिस इज 1 and 5. राइट बच्चे, कैलकुलेशन सिंपलर हो जाती है अगर एक फ्रैक्शन मिल जाए आपको तो. तो अभी क्या हुआ? 22 5 sir is 110. 110 जो है वो लेंथ आ गई पूरी इन मिलीमीटर्स. 110 मिलीमीटर लेंथ रिक्वायर्ड है सरकमफ्रेंस के लिए ऑफ द सर्कल. सो 5 डायामीटर्स और ऐड करने हैं. एक डायामीटर इज 35, सो 35 into 5. राइट नो बच्चे? Yes, ma'am. तो 175. The value for 5 diameters length is 175 millimeter. You add both, you will get the length of silver wire used. Length of silver wire. Ma'am, your mic is on. सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे. अब यहाँ तक हो गया ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, ma'am. एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? एक पहले मुझे ये बताएंगे कि थीटा क्या होगा. कौन बताएगा यहाँ मुझे थीटा क्या होगा?
लॉजिक क्या है मान्य प्रीशा? सिंपली यस यू नो कह दिया करो कि पता है या नहीं पता है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से बताओ, पता है क्या? कुछ सोच पा रहे हो? मैम नो। देखो कितने पोर्शंस में डिवाइड किया आपने सर्कल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 360 डिग्री को 10 पोर्शंस में कट कर दिया आपने, 36 डिग्रीज। राइट। तो 36 डिग्रीज हो गया यहाँ पर आपका थीटा। ठीक है बच्चे, ये बात लिखनी है। अब आप 36/360 मतलब 1/10 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए 22/7 और पाई को 35/2 यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? इसे Yes. 1/10 यूज करेंगे और अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जल्दी से कर लो सिंप्लीफाई। न्यूमरेटर्स में 35 × 11 रह गया, 385 बाय डिनोमिनेटर्स में 4। आंसर चेक कर लो बच्चे, 96 1/4 स्क्वायर मिलीमीटर्स। 96.25 भी लिखा हो सकता है, 96 1/4 भी हो सकता है। Ma'am, the answer is 285 millimeters. 285 मिलीमीटर्स तो फर्स्ट पार्ट का है ना बेटा आंसर। अच्छा, क्या बच्चे? they just left it as 385/4. हाँ तो आप वैसे हमेशा रिकमेंडेड होता है इम्प्रॉपर का फ्रैक्शन कहीं भी हो तो यहाँ उसे डेसिमल या उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना चाहिए, बट अप टू यू पीपल। ठीक है बच्चे, हो गया ये क्वेश्चन। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 now we'll be solving. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Equally spaced होती है ना ribs, इन्हें ribs कहते हैं। जो अंदर वायर्स होती हैं उन्हें ribs कहते हैं अम्ब्रेला की। तो वो इक्वली स्पेस्ड है ribs, assuming umbrella to be flat circle। ये एक फ्लैट सर्कल है पूरा अम्ब्रेला जिसके क्लॉथ पीस को फ्लैट बिछा दिया गया है। ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर्स, दिस इज 45। Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. So this area they are asking you to find out. दो consecutive ribs के बीच का area they are asking you to find. ठीक है बच्चे? तो अगर 8 ribs है, तो क्योंकि मुझे यहाँ सेंट्रल एंगल पता करना है कि बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा क्या है, तो 1 2 3 4 4 डायामीटर्स है मतलब 8 रिब्स ड्रॉन है। अब अगर 4 डायमीटर्स ड्रॉन है तो पोर्शन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पोर्शंस में 360 डिग्री को डिवाइड किया गया है। तो 360/8 से आपको थीटा पता चल जाएगा, राइट और नॉट बच्चे? Yes, ma'am. तो मैं मन में ऐसे सोचती हूँ डिवाइडिंग बाय 8 मींस कटिंग इनटू हाफ 3 टाइम्स। तो एक बार कट किया 180, एक बार कट किया 90 और एक बार कट किया 45। ऐसा ओरली कर लेते हैं, ठीक है? सो थीटा क्या आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। सो दिस इज 45 डिग्रीज। अब ये 45 डिग्री है तो आपको इसका एरिया फाइंड करने के लिए 45/360, राइट? और 45 टाइम्स 8 होगा ना 360 डिग्री, तो 1/8 होगा। ठीक है, तो 45/360
into pi r square. So pi का 22 value by नहीं 7. given है. 22/7 into r will be 45 into 45. 45. ठीक है बच्चे, समझ में आया? Yes. सॉल्व करो इसे जल्दी से. 4 times 11 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. 45 का स्क्वायर होगा 4 5 20 2025 into 11 by 4 4 नहीं 28 7 भी है. इसको सॉल्व करना है बेटा आपने. जल्दी से करो. 2 मिनट्स का पॉज दे रही हूँ. कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ व्हाट इज योर आंसर. इज इट मैचिंग विद द रेफरेंस शीट? No, ma'am. 3 Yes, 2. ma'am. 2 to 2. ओके. I have the same thing. 22275/28 is left as the answer in the reference answer sheet. You can also leave it like that. Units जरूर लिखना. एरिया है इसीलिए स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है बच्चे, क्लियर? Yes, ma'am. थीटा कैसे फाइंड करना है क्वेश्चंस में समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes. नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं आप. क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दे आर सेइंग अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप. तो कार के 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. तो कैसे होता है? कार का वाइपर एक कोई पोर्शन स्वाइप कर रहा होता है ना, ऐसा, और दूसरा वाइपर एट अ डिस्टेंस ऐसे क्लीन कर रहे होते हैं इस पोर्शंस को, 2 वाइपर, है ना? थोड़ा और क्लोजर होता है, बस इससे दूर. तो अब ये क्या है, 2 वाइपर्स क्लीनिंग कर रहे हैं और ओवरलैप नहीं हो रहा है उनका एरिया. ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर sweeping through an angle of 115 degrees. 115 degrees. Find the area cleaned by at each sweep of the blade. ये हर स्वीप पे ब्लेड्स की, दोनों ब्लेड्स की, हर हर स्वीप पे कितने एरिया जो है स्वीप हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एरिया ऑफ वन सेक्टर फाइंड करेंगे एंड वील डबल इट. ठीक है बच्चे, तो हम इसे लिख लेते हैं OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB times 2. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है बच्चे, और कैसे फाइंड करेंगे? 115 डिग्रीज, 115/360 डिग्री. इसका फ्रैक्शन प्लीज सॉल्व करके ही देखना. 22/7 into 25 into 25. ठीक है बच्चे, 115 and 360. ये तो डिविजिबल नहीं है, 23 और 70 लिख दो. 72 is 8 9s are 2 से ही कैंसिल करना पड़ेगा. और 36 is 9 4s are. अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो कट ही करना पड़ेगा. 7 भी इधर किसी से भी कट नहीं हो रहा है. तो 23 times 11 into 25 into 25 is 625 by 36 into 9 Ma'am, into 7. into Right? 7 into 7, right? Into 7.
इसे भी फ्रैक्शन में ही आंसर होगा, इसका फ्रैक्शन निकाल लो फाइनली न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके, एंड दैट विल बी योर आंसर। जल्दी जल्दी से निकाल के मुझे आंसर बताओ। कैलकुलेशन में दिस इनटू टू फाइनली करना है, वो 36 को कम कर देगा, सो दैट विल बी 1 एंड दिस विल बी नाउ 18। और अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 126 जो है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, एंड न्यूमरेटर क्या आ रहा है मान्या? 158125. राइट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? Yes, ma'am. चलें भी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमने क्या कर लिया, हमने वाइपर क्वेश्चन भी कर लिया, अब तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बाकी है बेटा तीनों। मैम और होमवर्क आप के लिए दे दो. होमवर्क के लिए दे दूं? होमवर्क के लिए दे सकती हो, चलो मुझे इसका आंसर बता दो। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर पी इन डिग्रीज ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर। जल्दी से बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एंगल पी है, ये एंगल पी है, और ये रेडियस जो है वो आर है कैपिटल के साथ। क्या फॉर्मूला होगा इसका? 3/360 into 2 pi r. No, 2 पाई आर के उससे तो लेंथ आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थोड़ी square. आएगा बेटा, ये तो नहीं हो सकता। P by 720 into 2 pi r square. क्योंकि ये 2 फिर और 2 ये, कट जाएगा. हाँ बड़े स्मार्टली दे हैव given us the option is p by 360 into pi r square, तो वो 760 को they have changed. Okay, so D option is the correct one. Question number 12 and 13 is your answer. Is your homework, my bad, is your homework. Okay, क्वेश्चन नंबर 12 एंड Yes. 13 बेटा होमवर्क में फिनिश करो, और आज 2 आवर्स के अंदर अंदर बाय 4 मुझे ये पूरा का पूरा सबमिशन मिल जाना चाहिए। आरुष, आर यू गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस बेटा? Ma'am, Yes, of ma'am. all the questions. ऑफ ऑल 14 क्वेश्चंस। Yes, ma'am. प्रिशा, Yes, ma'am. डिड यू गेट द इंस्ट्रक्शंस? बाय 4 Yes, ma'am. PM आई शुड गेट द सबमिशन। ठीक है, चलो Yeah. बाय बाय फॉर नाउ, चलो। Thank you, ma'am. Bye.